which is coming in, we are shifting focus across to another controversy which has hit the Aam Aadmi Party. In a big claim, now Swati Maliwal has claimed that Arvind Kejriwal has built Sheesh Mahal in Punjab, which has got a luxurious 7-star government bungalow of 2 acres from Chief Minister's quota in Sector 2 of Chandigarh. That's a big breaking news that we are getting for you after the Sheesh Mahal, which here on Times Now we had gotten for you exclusive details of in the national capital Delhi when Arvind Kejriwal was the Chief Minister. Now you have the allegation of another Sheesh Mahal which is being built allegedly in Punjab, that too using the taxpayers' money. That's a big allegation which is coming in from Swati Maliwal, who, remember, used to be part of Arvind Kejriwal's inner circle as well. Let's tell you exactly what Swati Maliwal has said, one of the closest aide at one time of Arvind Kejriwal. This is what she has put out. In fact, this is what the BJP has put out in their post. They have said that big breaking news, the man who pretended to be the common man, of course, the muffler man, the Aam Aadmi as he called himself, saying that the Aam Aadmi, Arvind Kejriwal, has had another grand Sheesh Mahal built after the Delhi Sheesh Mahal was vacated. Now Punjab's Super Chief Minister Arvind Kejriwal has had an even more splendid Sheesh Mahal which is being built in Punjab, in addition to the one which was built in Delhi, is what the BJP has alleged. It says that in Chandigarh Sector 2, a luxurious 7-star government mansion of 2 acres have been built on the CM's quota, which has been allotted to Arvind Kejriwal. And this is what the BJP has put along with the map, the aerial map of that area, saying 2 acres in this lush green land of Punjab has been now gifted away to Arvind Kejriwal, where he is building another Sheesh Mahal. We are going... Well, in fact, let's tell you more about what really has been happening. We are going to go across to what Swati Maliwal has also now said. In fact, let's tell you what exactly it is that Swati Maliwal has said. There you have it on your screens. You have the same aerial map which has been put up by Swati Maliwal. In this post, she says that after the Sheesh Mahal in Delhi became vacant, Arvind Kejriwal has had an even more splendid Sheesh Mahal built in Punjab than the one in Delhi. In Chandigarh Sector 2, a luxurious 7-star government mansion of 2 acres under the CM quota has been allotted to Arvind Kejriwal. Yesterday, she says, he boarded a government helicopter right in front of his house for Ambala, and then from Ambala, the Punjab government's private jet took him to Gujarat for party work. Essentially saying that it is the funds of the people, funds of the party, which has been used for this Aam Aadmi, the muffler man, to fly around in great luxury. Swati Maliwal goes on to say that the entire Punjab government is engaged in serving only one man, and that man is not even part of the government. Well, these are the kind of allegations which are coming in. We are going to go across and get you more voices which are coming in. There is Pulkit Nagar who's joining us with all the details. Pulkit, यहाँ पर टाइम्स नाउ नवभारत ने जो मेगा एक्सक्लूसिव किया था about the Sheesh Mahal, ऑपरेशन शीश महल था, but that was all about Delhi. But now you have another पैरेलल शीश महल. यहां से तो एविक्ट हो गए, जनता ने भगा दिया उनको. हाउएवर, अब ये बताइए कि पंजाब में कैसे एलिगेशन है कि अरविंद केजरीवाल एक और शीश महल बना रहे हैं. स्वाति मालीवाल और दिल्ली बीजेपी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये सवाल उठाए गए हैं और एक तस्वीर भी पोस्ट उन्होंने की है. असल में अगर देखिए तो पंजाब के अंदर सीएम कोटे के कुछ घर होते हैं. आरोप इसी को लेकर लगाया जा रहा है कि सीएम कोटे के घर ही अरविंद केजरीवाल को उनमें से एक घर दिया गया है और जिसे शीश महल की तरह तैयार किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब में है. तो वहीं से ही वो आरोप लगाए गए हैं कि वो उसी घर से कल हेलीकॉप्टर से गए और उसके बाद में चार्टर्ड प्लेन से आगे की तरफ निकल गए. लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पे कुछ कहा नहीं गया है कि क्या ये घर अरविंद केजरीवाल को अलॉट कर दिया गया है या नहीं, और साथ ही क्या इसे तैयार करने के लिए दिल्ली में जैसे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे सरकार के, क्या इसी तरीके से इसे तैयार करने के लिए करोड़ों का बजट रखा गया या नहीं. अभी ये इनका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है. जी वेल, इनफैक्ट दूसरे और में हमारे साथ
बने रहो। पुलकित, आई जस्ट गो अक्रॉस टू अनिल झा ऑफ द आम आदमी पार्टी। अनिल झा जी, आप बता सकते हैं क्या ये सच है कि एक शीश महल जो दिल्ली में बना था उससे भी और लग्जूरियस एक पैलेस बनाया गया है, और वो भी पंजाब में अरविंद केजरीवाल से? मुझे लगता है कि टोटली बीजेपी सेंसलेस इश्यूज को उठाने के अलावा कोई काम पंजाब में नहीं कर रही। इसलिए पंजाब में पिछले 70 सालों में इतना जबरदस्त उनकी शाखाएं लगने के बाद विश्व हिंदू परिषद, मतलब ये झूठ है, ऐसा कोई घर नहीं बन रहा। देखिए, पहले बात तो दिल्ली में भी नहीं हुआ था इतना, कोई इतना जितना हल्ला मचाया गया, कोई पेमेंट इतनी नहीं लगाई गई थी। कम से कम मुझे इतना पता है सिरसा के महल से, जो मनिंदर जी की सिरसा अनिल झा जी, मेरा प्रश्न ये था, मेरा क्वेश्चन बस ये था, ये सच है या झूठ है? ऐसा घर कोई बन रहा है या नहीं बन रहा? हम इस तरह की ना हमारे पास कोई जानकारी है ना ऐसा कोई घर नहीं बन रहा अरविंद केजरीवाल के लिए 2 एकड़ की जमीन पे? आप देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी बोलिए आप, मैडम रिक्वेस्ट, हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। वो मेरे श्रेष्ठ नेता हैं, मैं उनका वर्कर हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बड़े रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मुझे रेस्पेक्टफुली, किसी को अगर जी ना बोले तो उसका रेस्पेक्ट नहीं होता। अनिल झा जी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको भी बुरा लग जाए। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी बोलता हूँ, मैं रेखा जी को रेखा जी बोलता हूँ। आपकी बात है, हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं, एवरीवन इज एन इलेक्टेड लीडर, सिंस यू आर टीचिंग मी प्रोटोकॉल। अनिल झा जी, आप सुन लीजिए, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, देन लेट मी ऑल्सो गिव यू लेसन्स एंड प्रीच टू यू अबाउट प्रोटोकॉल। I will give the exact name, the exact designation that a person holds, including Prime Minister Narendra Modi. I will also call Arvind Kejriwal, the convener of Aam Aadmi Party. Do not tell me I need to add salutations. उनको जी लगाना है, उनको श्री श्री लगाना है, आप मुझे मत सिखाइए। I will use the official designations of what respect should be given as per the position, and you cannot tell me Arvind Kejriwal mat boliye, Arvind Kejriwal ji boliye. You are nobody to preach me. You are nobody to preach me, but perhaps यही प्रॉब्लम है। Let me go across. अब मुझे लग रहा है अनिल झा जी ने फोन काट लिया है। अनिल झा जी, आप वहां पर है? Are you there with us? He's cut the phone. Such is the mentality that they don't like the name Arvind Kejriwal, as if it's offensive to call someone Arvind Kejriwal. जब तक जी नहीं लगाएंगे तब तक प्रॉपर सैल्यूटेशंस नहीं है। हम किसी के दरबार में नहीं आए हुए हैं that we need to do salutations. आदेश गुप्ता is joining us of the BJP. आदेश गुप्ता जी, आई होप आपको बुरा नहीं लग रहा, आपके नाम के पीछे मैंने जी नहीं लगाया। सैल्यूटेशंस के लिए यहाँ पर नहीं आए, मगर आम आदमी पार्टी ने तो फोन काट दिया, उनके स्पोक्स पर्सन ने फोन काट दिया, सेइंग कि अरविंद केजरीवाल के नाम के पीछे आपने जी क्यों नहीं लगाया? ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के वोट लेके और वीआईपी कल्चर अपनाते हैं। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए और सुरक्षा नहीं चाहिए। अभी जब केजरीवाल को अपना घर नहीं मिला तो इन्होंने कोर्ट में, इनके वकील ने कहा कि अरे, हमारे जो सरकारी वकील ने कहा कि आप तो 4 कमरों के फ्लैट में रहना चाहते थे, तो वो ये कह रहे तो जुमला है, चुनावी जुमला है। इनका वकील बोला या आप हमें पूरे टाइप 8 क्वार्टर हमें चाहिए। तो ये इनकी मेंटेलिटी आम आदमी पार्टी की, वीआईपी कल्चर है। ये दिल्ली में भी अपनाया था, वो कहीं भी अपना सकते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना और कैसे ऐशो आराम के सामान जुटाए जाएं, ये इनकी एक आदेश गुप्ता जी, एक और क्वेश्चन मेरा है कि अभी आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि ये सारा जुमला है, बीजेपी का ऑर्केस्ट्रेटेड जुमला है, ऐसा तो कोई घर बन ही नहीं रहा। कैन यू ऑथेंटिकेट इट? उसके बाद मैं आईपी सिंह जी के पास भी जाऊंगी, मगर आदेश गुप्ता जी पहले आप बताइए। देखिए, इनके राज में कुछ भी संभव है, और मैं आपको बताऊं, जिस तरह पंजाब की सरकार के सुपर सीएम केजरीवाल जी बने हुए हैं ना, वो सब लोग जान रहे हैं कि वो वहां पे पैसा उगाना है, अपनी पावर बढ़ाना है। वो वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं, सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, और वो जिस तरह से वहां घर क्या बंगला कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ऐशो आराम की वहां कर सकते हैं। और अब पंजाब की जनता जान गई है, वो भी समझ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि अब यहाँ हमारा अंतिम समय आ गया है। जैसे दिल्ली से उखाड़ के फेंका है, वैसे ही वहां से भी उखाड़ के फेंके। मगर आपने हाँ ना में जवाब नहीं दिया कि घर बन रहा है कि नहीं वहां पर 7 स्टार लग्जरी के साथ। आईपी सिंह जी ऑफ द समाजवादी पार्टी इज ऑल्सो देयर विद अस। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? आईपी सिंह जी, बीजेपी का जो चार्ज है कि आम आदमी
मफलर मैन जो अपने आप को बोलते हैं, अब राजा बन चुके हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि श्री अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ये वो चोर, ये डकैत जिन्होंने पूरे देश को लूट लिया है, स्विस बैंक का खाता भरता जा रहा है। और वो स्वाति मालीवाल दारू पीकर अब भटकने वाली सड़कों पर जो ये कहती है कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे, इसके पिता those are personal remarks. आप उस बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं when we can't authenticate any of that? आईपी सिंह जी, आप इस पे जवाब दीजिए। शीश महल पंजाब में बन रहा है by someone who calls himself an आम आदमी। युवान को ट्वीट किया है। और देश का दुर्भाग्य है कि मनीष सिसोदिया जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों पर ये जो सबसे बड़े डकैत हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, ये लोग झूठे मनगढ़ंत केस बनाकर ये तो राजा हरिश्चंद्र को जेल में डाल दे। ये उस तरह के लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल राजा हरीश चंद्र जी है, इज व्हाट आईपी सिंह ऑफ द समाजवादी पार्टी इक्विवेलेंस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, appreciated Mr. IP Singh as well as Adesh Gupta for joining us here on the show. With that, we are slipping into a short break, but this continues to be one of our top focus stories here on Times Now.